میرا نام فردوس ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ جب آدھی رات کو میں جنگل میں علی خاور کی محبت کا انکار کیا تو وہ غصے سے میرے ہاتھوں کو پکڑے درخت سے لگائے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو، کھاؤ میری قسم۔ لیکن میں اسے کہا چھوڑو مجھے، لیکن وہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں جنون تھا مجھے پانے کا۔ یہ دیکھ کر تو میں کانپ اٹھی کیونکہ اس نے اچانک سے عشق دسمبر 13۔ فردوس سن سی بیٹھی علی خاور کو دیکھتی رہی، اس کے الفاظ جو وہ کہہ رہا تھا سنتی رہی۔ نہ جانے کہ اسے علی خاور کے برے ہوئے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کی وہ انگلی پکڑا ہوا تھا جس میں وہ سیاہ رنگ کی خوبصورت سیاہ پتھر والی انگوٹھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنائی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا بے حد بےقراری سے منتظر تھا کہ وہ اسے کیا کہے گی۔ فردوس خاموشی کے ساتھ حیرانی سے اسے دیکھتے رہی۔ اچانک ایک تیز رفتار سے آندھی چلی وقت اور حالات تبدیل ہو گئے۔ لمحے بھر میں اس کی آنکھوں کے آگے رضا کا غصے والا بھرا ہوا چہرہ آیا تھا۔ اسی لمحے اسے رابعہ کے الفاظ یاد آئے، فردوس تمہیں پتا ہے نا تم نے اپنے بابا سے کس چیز کا کہا تھا؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں۔ اگر انہوں نے سوچ لیا یا مان لیا تو سمجھو ان کے لیے اور ہمارے لیے وہ بات پتھر کی لکیر ہے۔ جس چیز کے لیے تم نے اپنے باپ کو ہاں کی ہے، اگر اس کو پورا کرنے میں غلطی کوئی ہوگی تو بیٹا تم بے حد تکلیف اٹھاؤ گی، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں بھی۔ امی آپ بے فکر رہیں، مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، اور بابا جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ فردوس کو اپنے ہی بولے الفاظ دوبارہ سے یاد آئے تھے، میں یونیورسٹی صرف تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، مگر اگر مجھے تمہارے متعلق یا پھر کسی اور کے متعلق تم سے متعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز نظر آئی یا پھر سننے میں آئی تو یاد رکھنا کہ اچھا نہیں ہوگا، اور تمہاری نظر میں اور میں ایک بے حد ظالم انسان ہوں، اور اس وقت میں ایک انتہائی ظالم انسان بن کر ضرور تمہیں دکھاؤں گا اگر تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ تو رضا کے بولے ہوئے الفاظ تیزی سے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ سن ہو گیا ہے۔ رضا کے غصے سے بھرپور چہرہ اس کے بولے ہوئے تمام الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ کیا چیز اس کی پہنچ اور سوچ سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے؟ اور کیا اب وہ رضا کی بات پر عمل کر پائے گی؟ کیا وہ اپنے دل کو چھوڑ کر اپنے باپ کی مرضی پر راضی ہو پائے گی؟ کیا جب اس کے بارے میں بابا کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ وہ کس طرح سے اس چیز کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے؟ اور میری امی تو وہ نہیں۔ فردوس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے خشک پڑتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ اسے نہ جانے کیوں ایک دم علی خاور کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ محبت اس کے اظہار کے نام سے وہ یوں جیسے کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ کیا وہ بھی علی خاور کے دل میں وہی جذبات رکھتی ہے جو علی خاور اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے؟ مگر فردوس کے اندر اس چیز کو کہنے کی ہمت شاید مرتے دنگ کبھی نہ ہو۔ مگر وہ ایک بہادر لڑکا تھا، اس نے اپنے دل کی بات کو بڑی آسانی سے اس کے آگے رکھ دیا تھا، اور وہ جس طریقے سے اسے کہہ رہا تھا وہ انداز بہت مضبوط تھا۔ فردوس خوب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے ارادے ایک برف کی چٹان جتنے مضبوط ہیں۔ اتنے عرصے میں اس چیز کا اندازہ تو فردوس کو ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والا بالکل نہیں۔ کیا اب اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی، محبت اور نفرت کی جنگ، اور اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی، محبت کی یا نفرت کی؟ علی اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلنے لگی تھی۔ فردوس نے اپنے گال پر گرتے ہوئے آنسو صاف کیے تو علی خاور حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ فردوس جانتی تھی کہ اس محبت کی کہانی کو کبھی پورا نہیں ہونا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کبھی نہیں لڑ پائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ محبت کی کہانی اس کے باپ کے آگے آ گئی تو وہ اور اس کی ماں جو بیچاری پہلے سے گھٹ کر مر رہی تھی، یہ پتا لگنے پر تو مر ہی جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے محبت کیسے ہو سکتی ہے علی خاور سے؟ نہیں، ایسا نہیں، مجھے علی سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، یہ صرف اور صرف میرے دل و دماغ کا فطور ہے۔ ہاں بالکل، مجھے علی خاور سے محبت نہیں، میرے دل میں علی خاور کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اسے بالکل محبت نہیں کرتی، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ بابا ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور میری امی نہیں، بالکل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں اسی سے شادی کروں گی جسے میرے بابا کہیں گے، میں اپنی ساری خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگاؤں گی، مگر اپنی ماں کے لیے کسی قسم کی کوئی اور کھائی نہیں کھونے دوں گی اپنے بابا کو۔ فردوس نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے علی خاور کے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑوائی تھی، یوں ہی جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ علی خاور بے حد حیرانی سے فردوس کو دیکھتا رہ گیا۔ فردوس علی سے پکارا، میں بولتے ہوئے اس کی آواز کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی، میں آپ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور اس کے ہونٹوں سے الفاظ موتیوں کی طرح ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ فردوس کو بولنا اس قدر مشکل لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو اوپر بہت وزنی
पत्थर रख दिया हो। वो जैसे जैसे अली खबर को देखती रही, उसे यूं लग रहा था कि दिल पर वजन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं। वो हवास बाख्ता अली खबर के चेहरे को देखते हुए कह रही थी, फिरदौस, नहीं, मुझे नहीं, आप से मोहब्बत नहीं। फिरदौस, तुम ठीक हो? अली खबर बेकरार से एकदम उसके करीब हुआ तो वो 2 कदम पीछे हो गई। प्लीज खुदा, खुदा का वास्ता है, इस बात को यहीं खत्म कर दें, इस तरीके में, इसी जंगल में, इस समय। अगर ये बात यहाँ से बाहर आ गई तो क्यामत आ जाएगी। अली खबर पर हर चीज जलकर उसकी क्यामत में राख हो जाएगी। अगर ये मोहब्बत की कहानी यहाँ से बाहर निकली तो हर एक की जिंदगी में तूफान आ जाएंगे, हर एक की खुशियां तबाह हो जाएंगी। मैं मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, ना आपसे और ना किसी और से। वो बच्चा की तरह रोते हुए कह रही थी, तुम किस चीज से डरती हो फिरदौस? अब बस एक बार कहो, बस एक बार, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एक कर दूंगा। तुम जिससे कहोगी उससे तुम्हारे लिए बात करूंगा, जो करना पड़े मैं करूंगा। बस तुम मुझसे भरोसा रखो, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बेहद सच्चे और मोहब्बत से भरे हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी शिद्दत से किसी से मोहब्बत की है। तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली पहली लड़की हो। मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में, अपने घर में बेशुमार बार देखा है फिरदौस। मैं तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ सकता हूँ, हर किसी के आगे खड़ा हो सकता हूँ। बस तुम एक बार कहो, कहो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो मुझसे, और मेरा हाथ थाम लो। बट फिर तुम देखना, मैं सबसे कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना और मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बच्चों की तरह रोते हुए चीख पड़ी, मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं अली खावर, आपको आपको भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। ये बस वक्ती जज्बा है और मैं जानती हूँ कि ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस चीज को यहीं खत्म कर दे, इस बात को इस तारीखी जंगल में दफन ना दिए। फिरदौस अली खावर ने बेहतरानी से देख तरह क्या क्या कह रही है? खुदा का वास्ता है अली, मैं जितनी बहादुर नहीं हूँ, मैं वोटर पे बहुत कमजोर हूँ, इससे भी ज्यादा कमजोर जितना मैं खुद को समझती हूँ। मोहब्बत बुजदिलों पर नहीं जचती अली खाबर, और मैं बेहद बुजदिल और हद कमजोर, और मेरे लिए मोहब्बत जैसी कोई शय नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि ये वक्ती जज्बा है फिरदौस? तुम मेरी मोहब्बत की बेइज्जती नहीं कर सकती, ये कोई वक्ती जज्बा नहीं है फिरदौस, और आइंदा मेरी मोहब्बत को वक्ती जज्बे का नाम मत देना। मैंने तुमसे मोहब्बत की है फिरदौस, मोहब्बत समझे तुम, दिल लगी नहीं की। कुछ वक्त के बाद तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी अम्मी से बहुत पहले बात कर ली है फिरदौस। अगर मैं तुम्हें इस हद तक नहीं चाहता तो अपनी माँ के आगे तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, इनसे ये नहीं कहता कि फिरदौस को मेरी जिंदगी में हर हाल मेरे साथ मिलकर शामिल करें। तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ के आगे एक बच्चे की तरह रिक्वेस्ट की है, और तुम्हें पता है कि फिरदौस, उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, वो हमेशा हमारे साथ देंगे, हमेशा तुम बस मुझ पर भरोसा करोगी। वो बेहद नरम सी आवाज में फिरदौस को कह रहा था, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है अली खाबर, मुझे किसी से किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कह रही थी, मुझसे झूठ मत बोलो फिरदौस, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अब की बार अली खाबर को गुस्सा आ गया था, उसने करीब रखी हुई पानी की बोतल जोर से जमीन पर मारी। यही बात तुम एक बार मेरी आंखों में देख कर कहो, यही बात है जो तुम मुझसे नजर चुराते हुए इधर उधर देख कर कह रही हो। मुझसे झूठ बोल सकती हो, सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, मगर खुद अपने आप से कैसे झूठ बोलोगी? फिरदौस, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी है। फिरदौस, वही बेचैनी देखती है जो मेरे मुझे महसूस होती है जब मैं तुमसे दूर होता हूँ। अपने आप से झूठ मत कहो फिरदौस, क्यों अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगा रही हो? थोड़ी सी बहादुर बनो, या सिर्फ मेरा हाथ थाम लो, मैं खुद तुम्हारे आगे खड़ा हूंगा, हर किसी से लड़ जाऊंगा। बस बस तुम एक बार मेरा साथ दो, कम जख्म मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं और मजबूत होकर जाऊंगा। मेरी मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे किसी किस्म की कोई और ताकत रोक नहीं सकती, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कौन सी मोहब्बत अली, कौन सी मोहब्बत? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं करती, फिर आप क्यों इस चीज के पीछे पड़े हैं? मैं आपको हाँ कहूँ जबकि कोई ऐसा जज्बा मेरे दिल में नहीं है। अब की बार वो ज्यादा जोर से बोली थी, जबकि लिखावर खामोशी के साथ उसका चेहरा देखता रहा। फिरदौस बैठी अब बच्चे की तरह रो रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था फिरदौस की मोहब्बत इंसान को बहुत खुमार करती है, और पसंदीदा शख्स की बेरुखी और उसकी सख्त बातें इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। आज इस बात का एहसास हो रहा है मुझे कि मोहब्बत में तकलीफ का मिलना क्या होता है। अली फिरदौस की आंखों में देखते हुए कह रहा था, जबकि अली खाबर को इस कदर अजियत में देखकर फिरदौस को
अलग सी बेचैनी होने लगी। मेरे साथ ये मत करो फिरदौस, मैं जानता हूँ तुम इतनी पत्थर दिल नहीं हो कि मेरी मोहब्बत भरे जज्बे को फिर सच्चे जज्बात के मेरे मुंह पर यूं खींच कर मार दो। अपने बाप से डर मेरी मोहब्बत से इनकार करो फिरदौस। मैंने चाहा, तुम्हें बेहद चाहा, अपनी जिंदगी के बहुत से ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ देखे हैं। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम रोजाना मेरे ख्वाब में आती हूँ। तुम इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि रात को तुम्हारे ख्यालात मेरे दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। तुम्हारी ये सब्ज आंखें, तुम्हारे ख्वाब और होंठ तुम्हारी गुस्से भरी आंखें, तुम्हारी नरमी की बातें मुझे सारी सारी रात जगाती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इतनी सख्त दिल नहीं हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। फर्द खामोशी से उसे देखती रही। उसके बाद उसने भी अल्फाज कहे जो वो काफी देर से कह रही थी। अली खावर, आपको गलती होगी मुझे समझने में, और आपको मोहब्बत की भी गलतफहमी होगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या फिर करने लगी हूँ, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही आपसे मोहब्बत करती हूँ, यही सच है। फिरदौस ने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां बेहद जोर से बंद कर रखी थी, इतनी जोर से कि उसके नाखून उसकी हथेलियों पर चुभने लगे थे। वो बहुत ठहर ठहर कर एक ही बात कह रही थी, मगर उसने अली कावर से नजरें नहीं मिलाई थी। मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि उन्होंने मेरे लिए किसी को देख रखा है। मोटे मोटे आंसू फिरदौस के आंखों से गिर रहे थे। वो बहुत आहिस्ता आवाज में सोच सोच के कह रही थी, उन्होंने मुझसे कह दिया था कि वो अपनी मर्जी के लड़के से मेरी शादी करेंगे, और मैं इस चीज पर बहुत पहले हामी भर चुकी हूँ। अब मेरे लिए किसी और की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची, ना ही तो मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे दिल में किसी के लिए किसी किस्म की कोई जगह बाकी है। उसके हक में आंसुओं का एक गोला सा बन गया था, और जैसे उसकी आंखें सूज गई थी। मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा फिरदौस कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तो फिर ये कोशिश तुम क्यों कर रही हो? फिरदौस, मेरे साथ ये ज्यादती मत करो प्लीज। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बेहद सच्चे हैं यार। तुम क्यों मुझे यूं इतना तड़पाना रही हो, इतने सख्त अल्फाज बार बार कहकर? क्या तुम्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल में कितनी बुरी तरह से चुभ रहे हैं, जो इतनी आसानी से कह रही हो? मैं आपको और किस तरह से कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिरदौस प्लीज प्लीज यार, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ये मत करो। मैं इतना बेबस जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना बस और कमजोर मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे आगे। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, किस तरह से तुम्हें राजी करूं? तुम क्यों मुझे रुस्वा करना चाह रही हो? मत करो यार ये, प्लीज प्लीज। फिरदौस, ये मत करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे यार। मैं आपको रुस्वा करने नहीं जा रही अली खावर, और ना ही आपको तड़पाना चाह रही हूँ। मैं मैं तो इस तकलीफ से आपको दूर करना चाह रही हूँ बस। तुम मुझे इस तकलीफ से दूर नहीं कर रही, बल्कि मुझे मजीद तकलीफ दे रही हो। अब की बार अली बेहद नरमी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम जिसकी किस्म की कहोगी, मैं वो कसम खाने को तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आखिर सांस तो तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे वफादार रहूंगा, सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करूंगा। क्यों मुझे बार बार जलील कर रही हो फिरदौस? मत करो प्लीज। फिरदौस अपना सर झुकाए बिल्कुल बेबसी की आलम में बैठी रोती रही, जबकि लिखावर उसके हाथों को पकड़े हुए था। फिरदौस को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दीवानी लड़की को इनकार करे। वो किसी किस्म की कोई बात समझाने को तैयार नहीं था, कोई ऐसा जुमला जिससे फिरदौस उसे ये कह दे कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, वो उसकी बात समझ जाए। मगर उसने फिरदौस की एक नहीं सुनी। वो अपनी मोहब्बत का इजहार इतने मजबूत लहजे से कर रहा था कि फिरदौस को अब खौफ आने लगा था। वो जानती थी कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, मगर वो साथ ही साथ ये भी जानती थी कि उसकी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, कोई मंजिल नहीं। वो जानते थे कि इस मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है, और वो दोनों ही तकलीफ उठाने वाले हैं। ऐसा मुमकिन नहीं। अली खाबर फिरदौस अपनी चेहरा नीचे किए रोती रही, जबकि अली उसके हाथों को मजबूती से पकड़े रहा, यूं जैसे अगर उसने उसके हाथ को छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। रात का न जाने कैसा कौन सा पैर था। वो रोती रही और आसमान से पानी आहिस्ता आहिस्ता बरसने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह से ये बात समझाऊं कि मैं आपके लिए अपने दिल में किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं रखती। वो अपने हाथ तेजी से अली खावर के हाथ से छुड़ाकर वहां से उठ खड़ी हुई और तेजी से जाने लगी कि अली खावर ने तेजी से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे जाने से रोका, और फिर मजबूती से उसे अपने दोनों कंधों पर पकड़कर उसे दरख्त से जारी है।